پروگرام چائنا ٹوڈے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس منفرد پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رامین سید۔ چین کی سیاست، معاشرت، ثقافت، معیشت اور دیگر شعبوں سے جڑی مختلف خبریں، تجزیات اور رپورٹس لے کر ہماری ٹیم ہر ہفتے حاضر ہوتی ہے۔ اس ہفتے ہم آپ کو آسیان ممالک اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون، چینی خلا بازوں کی سرگرمیوں، یوریشیا ایکسپو، چین کی بحری جہاز ساز صنعت کی عالمی پذیرائی، پن بجلی اور جوہری بجلی کی مسلسل بڑھتی پیداوار بارے بتائیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس بارے خصوصی رپورٹ بھی بلیٹن کا حصہ ہوگی۔ چین میں ڈرائیورز کے بغیر کاروں میں عوام کی دلچسپی اور تبت کی سیر بھی اس پروگرام میں شامل ہے، لیکن حسب معمول پروگرام کا آغاز کریں گے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے، جس میں اہم خبروں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ چین اور آسیان ممالک کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں تعاون بڑھ رہا ہے۔ ناننگ میں جاری 19ویں چین آسیان ایکسپو میں چین اور آسیان ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے 79 کیسز کا مظاہرہ کیا گیا۔ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی، ماحولیاتی نگرانی، قدرتی وسائل کے سروے جیسے شعبوں میں چین آسیان کی مدد کر رہا ہے۔ چین اور آسیان کے درمیان سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی کے میدان میں تعاون کی کامیابیوں کا مظاہرہ چین کے جنوبی کوانگ شی چوانگ خود اختیار علاقے کے شہر ناننگ میں جاری 19ویں چین آسیان ایکسپو کے درمیان دیکھنے میں آیا۔ 16 ستمبر سے جاری اس نمائش میں پہلی بار چین آسیان ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ انوویشن کوآپریشن ایگزیبیشن ایریا قائم کیا گیا، جہاں حالیہ برسوں کے دوران چین اور آسیان ممالک کے درمیان ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کے 79 کیسز کا مظاہرہ کیا گیا۔ چائنا سینٹر فار ریسورس سیٹلائٹ ڈیٹا اینڈ ایپلیکیشن نے سن 2012 سے اہم ریموٹ سینسنگ ڈیٹا فراہم کرتے ہوئے قدرتی وسائل کے سروے، ماحولیاتی ماحول کے تحفظ اور ہنگامی انتظامات کے علاوہ شہری اور دیہی تعمیرات پر آسیان ممالک کی مدد کی ہے۔ ریموٹ سینسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمین پر 30 سینٹی میٹر تک حجم کی اشیاء کو سطح زمین سے 500 کلومیٹر دور خلا سے واضح طور پر شناخت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ چوہائی کلاؤڈ کے تحت بغیر کپتان کے ذہین بحری جہاز نے جو مختلف حجم کے تقریباً 50 خودکار تحقیقاتی بحری جہازوں کو اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے، آسیان کے متعدد ممالک کو بہت سے سمندری سروے مکمل کرنے میں مدد فراہم کی ہے، جن میں سائنسی تحقیق، آبدوز کی نقشہ سازی، آفات سے بچاؤ اور تخفیف کے علاوہ ماحولیاتی ماحول کی نگرانی بھی شامل ہے۔ چینی خلائی جہاز شنچو 14 میں موجود خلاباز خلائی اسٹیشن کے اندر اور باہر مختلف سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ خلاباز ایئر لاک کھول کر خلائی اسٹیشن سے باہر نکلے، انہوں نے اضافی بیرونی ہینڈلز کی تنصیب، لوڈ سرکٹس کی توسیع، پمپ سیٹ کی تنصیب مکمل کی۔ چینی خلائی جہاز شنچو 14 کے ڈیزائنر کا کہنا ہے کہ خلابازوں نے 17 ستمبر کو خلائی انجینئرنگ کے تحت مستقبل کے ڈیزائنز کے لیے قیمتی تجربات حاصل کرنے کے ساتھ خلائی اسٹیشن سے باہر اپنی دوسری سرگرمیاں مکمل کر لیں۔ چین کی انسان بردار خلائی ایجنسی کے مطابق وانتھیان کے خلاباز سائی شوچر نے بیجنگ کے وقت کے مطابق دوپہر 1:35 پر ایئر لاک کیبن کا دروازہ کھولا، جس کے بعد سائی اور ان کے ساتھ خلاباز شانتونگ دوپہر 3:33 تک خلائی اسٹیشن کی بیرونی سرگرمیاں سرانجام دیتے رہے۔ ان سرگرمیوں کے دوران خلا نورد لیو یانگ خلائی اسٹیشن کے بنیادی ماڈیول میں رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی مدد میں مصروف رہیں۔ شنچاؤ 14 کے دیگر عملے کے لیے بیرونی سرگرمیوں کا یہ دوسرا جبکہ سائی کے لیے پہلا موقع تھا۔ ان خلابازوں نے اپنی ذمہ داریوں کا ایک سلسلہ مکمل کر لیا ہے، جس میں اضافی بیرونی ہینڈلز کی تنصیب اور لوڈ سرکٹس کے توسیعی پمپ سیٹ کی تنصیب شامل ہے۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغر خود اختیار علاقے کے ارومچی شہر میں 7ویں چین یوریشیا نمائش منعقد ہوئی۔ نمائش میں 861 کمپنیز شریک ہوئیں۔ آن لائن نمائش میں ایشیا، یورپ، امریکہ اور افریقہ کے 32 ممالک کی کمپنیز اپنی 16,000 سے زائد مصنوعات کے ساتھ شریک ہوئیں۔ چین کے شمال مغربی سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے کے اورمچی شہر میں نمائشی بوتھ 7ویں چین یوریشیا نمائش کے افتتاح سے پہلے ہی تیار کر لیے گئے تھے۔ یہ نمائش 19 سے 21 ستمبر تک آن لائن اور آف لائن دونوں طرح سے جاری رہے گی۔ سنکیانگ انٹرنیشنل کنونشن اینڈ ایگزیبیشن سینٹر، جو کہ ایکسپو کا مقام ہے، 2101 بوتھس پر مشتمل ہے۔ رواں سال کی چین یوریشیا نمائش میں قازقستان، ہنگری اور چین کے صوبوں کوانگتونگ اور چاچیانگ کو بطور مہمان خصوصی مدعو کیا گیا ہے۔
इस नुमाइश में चीन के 24 सूबाई सतह के इलाकों, सिंकियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कोर और सिंकियांग के 14 प्रीफेक्चर और शहरों से मजमूई तौर पर 861 कंपनीज शरीक हैं। रवां साल की नुमाइश को मसनूआत के लिए एक नया डिजिटल तिजारती प्लेटफॉर्म करार दिया गया है। ऑनलाइन नुमाइश में एशिया, यूरोप, अमरीका और अफ्रीका के 32 ममालिक और खित्तों की कंपनीज अपनी 16,980 मसनूआत के साथ हिस्सा ले रही हैं। चीन के कौमी इदारे शुमारियात का कहना है कि मईशत मुस्तहकम करने के लिए चीनी हुकूमत की पॉलिसी समर देने लगी हैं। चीनी हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को मुस्तहकम करने, मंसूबों के आगाज़ के लिए बेहतर मदद की फराहमी और आलात की खरीदारी और अपग्रेडिंग में ताउन जारी रखा है। बीजिंग में कौमी इदारा शुमारियात का कहना है कि चीन ने मईशत को मुस्तहकम करने के लिए पॉलिसीज़ और माबाद पॉलिसीज़ का एक पैकेज तैयार किया है, जिनके समरात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। इदारे ने तवक्को जाहिर की है कि चीनी मईशत की बहाली और सरगर्मियाँ एक माकूल हद के अंदर जारी रहेंगी। कौमी महकमा शुमारियात के तर्जुमान फू लिंग हुई के मुताबिक चीन की तवीलुल मुद्दती इक्तसादी बेहतरी के बुनियादी उसूल और आला मयार की हामिल तरक्की के मुआविन अवामिल में कोई तब्दीली नहीं आई। अगस्त में चीन ने इक्तसादी और समाजी तरक्की के साथ वबा की रोकथाम और तदारुक को मरबूत करने का अमल जारी रखा। उस वक्त पैदावारी तलब के अहम आशारियों में बेहतरी आने के साथ साथ कॉरपोरेट पैदावार और कारोबारी सरगर्मियां भी जारी हैं। सरमायाकारी के हवाले से चीनी हुकूमत ने सरमायाकारी को मुस्तहकम करने, मंसूबों के आगाज के लिए बेहतर मदद की फराहमी और आलात की खरीदारी और अपग्रेडिंग में ताउन जारी रखा है। इस दौरान नए मंसूबों की तादाद और मुजव्वज़ा सरमायाकारी की बदौलत निस्बतन तेज रफ्तार तरक्की का अमल बरकरार रहा, जिसने बुनियादी ढांचे और पैदावारी शोबे में सरमायाकारी की मुसलसल तरक्की में अहम किरदार अदा किया। चीनी जहाज साजी की सनत ने आलमी मंडी में बढ़तरी बरकरार रखी हुई है। चाइना एसोसिएशन ऑफ नेशनल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का कहना है कि आला दर्जे के जहाज़ों की अक़साम में चीनी शराकत में नुमायां इजाफा हुआ है। चाइना एसोसिएशन ऑफ नेशनल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का कहना है कि चीन में जहाज साजी की सनत ने आलमी मंडी में बढ़तरी हासिल करने का सिलसिला जारी रखा और सन 2022 के इब्तदाई 8 माह के दौरान मुकम्मल शुदा ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स और ऑर्डर्स की सबसे ज्यादा तादाद के साथ जहाज साजी की आलमी सनत की जानिब से इस्तेमाल होने वाले 3 बड़े मैट्रिक्स में सर फहरिस्त रही। एसोसिएशन के मुताबिक खासतौर पर जनवरी से अगस्त तक जहाज साजी की सनत में मुल्क के मुकम्मल शुदा ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स और मौजूदा ऑर्डर्स बेतरतीब 2,39,45,000, 2,08,53,000 और 10,20,30,000 डेड वेट टन तक पहुँच गए, जो कि आलमी सतह पर 45.4%, 50.6% और 47.7% हैं। नए ऑर्डर्स के आदाद-ओ-शुमार से जाहिर होता है कि आला दर्जे के जहाज़ों की अक़साम में चीन की शराकत में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसमें माए कुदरती गैस से चलने वाले बहरी जहाज़ों का हिस्सा 27.2% और 10,000 TEU से ज्यादा गुंजाइश के हामिल कंटेनर बहरी जहाज़ों का हजम 43.9% है। दरियाए योंगजी के मुआविन दरिया चिंशा पर ज़ेर तामीर पन बिजली घर के यूनिट नंबर 13 ने पैदावार शुरू कर दी है। इस अजीम शान पन बिजली घर के मजमूई यूनिट्स की तादाद 16 है। हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत 10 लाख किलोवाट है। चीन के जुनूब मगरिब में वाक़े पाईहथान पन बिजली घर के यूनिट नंबर 13 से 72 घंटे की आजमाइशी सरगर्मी मुकम्मल करने के बाद 19 सितंबर से बिजली की बाज़ाब्ता पैदावार का आगाज कर दिया गया है। ये अजीम मंसूबे में नस्ब किए गए मजमूई 16 यूनिट्स में से बिजली पैदा करने वाला 11वां यूनिट है, जो फाल हो चुका है। पाईहथान बिजली घर दोनों किनारों पर पन बिजली पैदा करने वाले 16 यूनिट से लैस है। इनमें से हर यूनिट की पैदावारी सलाहियत 10 लाख किलोवाट है, जो दुनिया में किसी एक यूनिट की सबसे बड़ी गुंजाइश है। पावर जनरेशन यूनिट्स 14, 15 और 16 के बाद यूनिट 13 बिजली घर के दाएं किनारे पर बाज़ाब्ता तौर पर काम करने वाला चौथा मेगावाट यूनिट है। इसकी तनसीब का आगाज सितंबर 2020 में किया गया, जिसके बाद 30 अगस्त 2021 को तमाम तनसीबात और वाटरलेस कमीशनिंग मुकम्मल की गई और 18 सितंबर को इसे बाज़ाब्ता तौर पर फाल कर दिया गया। पाईहथान पन बिजली मंसूबा मजमूई तौर पर 16 गीगावाट बिजली की सहूलत फराहम करेगा, जो जनूब मगरबी चीन में दरिया यांगजी के एक मुआवन दरिया चिनशा पर ज़ेर तामीर है। चीन दुनिया में कपड़ा साजी का सबसे बड़ा मुल्क, बरामद कुनिंदा और मंडी है। चीन की टेक्सटाइल सनत सब्ज़ तरक्की और डिजिटलाइजेशन की जानिब गामज़न है। गुज़िश्ता दहाई के दौरान चीन में माहौल दोस्त कारखानों, सब्ज़ तरसीली निज़ाम की खेप तश्कील दी गई।
वजारत सनत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कहना है कि चीन गुज़श्ता एक दिहाई से अपनी टेक्सटाइल की सनत में सब्ज़ तरक्की और डिजिटलाइजेशन का अमल तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ कर रहा है। इस मुहिम से हासिल शुदा नताइज ने सनत की आलमी मुसाबकत को नुमायां तौर पर मजबूत बनाया है। चीन ने, जो दुनिया में कपड़ा साजी का सबसे बड़ा मुल्क, बरामद कुनिंदा और मंडी है, फाइबर मवाद के अलावा टेक्सटाइल के आलात और माहौल दोस्त पैदावार के शोबों में भी बड़ी तादाद में कलीदी टेक्नोलॉजीज में शानदार कामयाबियां हासिल की हैं। साओ शुई चुन के मुताबिक टेक्सटाइल की सनत का सिलसिला मजीद आज़ाद और काबिल एतमाद अंदाज में जारी है। इसके अलावा चीन ने गुज़श्ता दिहाई के दौरान माहौल दोस्त कारखानों और सब्ज़ तरसीली निज़ाम की एक खेप तश्कील दी है, जिसने पैदावारी सरगर्मियों को बड़े पैमाने पर पैदावार से इनफरादी और लचकदार नमूनों में तब्दील कर दिया है, जिन्हें छोटी लॉट, कसीर अनवा और वक्ती सामान की मांग में जदीद मार्केट के लिए ज्यादा मौजूद करार दिया जाता है। गुज़श्ता 10 साल के दौरान टेक्सटाइल मसनूआत के सनती इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा हुआ। तकनीकी पारचाजात बड़े पैमाने पर तिब्बी शोबे और सेहत की देखभाल, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जियो टेक्निकल तामीरात, एरोस्पेस और दीगर बहुत से शोबों में इस्तेमाल किए जाते हैं। चीन के कौमी महकमा शुमारियात का कहना है कि आलमी जिद्दत तराजी के अशारिये में चीन की दर्जाबंदी मुसलसल बढ़ रही है। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से जिद्दत तराजी में चीन की सरमायाकारी में 10 बरसों में मुसलसल इजाफा हुआ। चीन के कौमी महकमा शुमारियात के मुताबिक साल 2021 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 18वीं कौमी कांग्रेस के बाद से जिद्दत तराजी में चीन की सरमायाकारी में गुज़श्ता 10 साल के दौरान मुसलसल इजाफा हुआ, जिसके साथ ही आलमी जिद्दत तराजी के आशारिये में मुल्क की दर्जाबंदी में मुसलसल इजाफा जारी है। जिद्दत तराजी पर चीन के मजमूई तहकीकी और तरक्याती अखराजात सन 2013 से जापान के अखराजात से तजावुज़ करते हुए दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। गुज़श्ता 10 साल के दौरान चीन ने साइंस और तालीम के जरिए मुल्क की तरक्याती हिकमत अमली और आला मयार के हामिल इंसानी वसाइल की तरक्की के जरिए मुल्क को ताकतवर बनाने की हिकमत अमली को अमली जामा पहनाने में ठोस पेशरफ्त की है, जिसके तहत तहकीक व तरक्की के अमले की मजमूई तादाद में मुसलसल इजाफा दुनिया में पहले नंबर पर आ चुका है, जबकि पेटेंट की दरखास्तों की तादाद में भी नुमाया इजाफा देखने में आया है। साल 2021 के दौरान चीन के अंदरून और बैरून मुल्क दिए गए पेटेंट की सालाना तादाद 46,01,000 रिकॉर्ड की गई, जो सन 2012 के मुकाबले में 2.7 गुना ज्यादा है। चाइना न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन की जानिब से 15 सितंबर को जारी करदा एक ब्लू बुक के मुताबिक मुल्क में ऑपरेशनल 53 तजारती जौहरी घरों ने अगस्त तक 5 करोड़ किलोवाट से जायद बिजली बनाई। आदाद शुमार के मुताबिक चीन में बिजली की मजमूई हुजम में जौहरी तवानाई का हिस्सा तकरीबन 5% तक पहुंच चुका है। चाइना न्यूक्लियर एनर्जी एसोसिएशन की जानिब से 15 सितंबर को जारी करदा एक ब्लू बुक के मुताबिक चीन जौहरी तवानाई के यूनिट्स की तामीर के पैमाने में नस्ब शुदा जौहरी तवानाई की सलाहियत में सूरत के साथ दुनिया की क़यादत जारी रखे हुए है। ब्लू बुक में कहा गया है कि चीन के पास इस वक्त अगस्त के आखिर तक 5 करोड़ 55,90,000 किलोवाट की मजमूई नस्ब सलाहियत के साथ 53 तिजारती जौहरी बिजली घर मौजूद हैं। जल्द ही 2 करोड़ 41,90,000 किलोवाट की एक और नस्ब शुदा सलाहियत इजाफी 23 यूनिट फराहम करेगी, जो ज़ेर तामीर हैं। ब्लू बुक के मुताबिक चीन के जौहरी बिजली घरों की महफूज और मुस्तहकम सरगर्मियां तवील अरसे से जारी हैं। साल 2021 से अब तक जौहरी तवानाई के 5 यूनिट कमर्शियल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि 9 यूनिट्स ज़ेर तामीर हैं। ब्लू बुक का कहना है कि 2030 तक गैर मादनी तवानाई चीन की बुनियादी तवानाई की खपत का तकरीबन 25% होगी और चीन में तवानाई के ढांचे की साफ और कम कार्बन के अखराज की हामिल तब्दीली का अमल मजीद तेज किया जाएगा। टुंगफोंग गैस फील्ड्स क्लस्टर मंसूबा बायनान में कुदरती गैस के घरेलू और सनती इस्तेमाल का अहम जरिया बन चुका है। हालिया बरसों में इस मंसूबे के तहत कुदरती गैस की तलाश के नए और स्मार्ट ज़राए तैयार करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजीज को अपनाया गया है। चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन या CNOOC के मुताबिक चीन में समुंदर से गैस निकालने वाले पहले क्लस्टर ने मुसलसल 19 साल से गैस की पैदावार में इजाफे की मुस्तहकम नमू को बरकरार रखा है, जिससे सूबा हाइनान को 60 अरब मैकब मीटर से जायद कुदरती गैस फराहम की जा रही है। टोंगफांग गैस फील्ड्स क्लस्टर, जो समुंदर में 10 प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म्स, एक जमीनी प्रोसेसिंग टर्मिनल और मुतादिद तेल और गैस के पाइपलाइंस पर मुश्तमिल है, बहरा जनूबी चीन के
مغربی حصے میں واقع پیداوار کے لحاظ سے سب سے بڑی خودکار گیس فیلڈ ہے۔ چین میں اسمارٹ سمندری گیس فیلڈز کلسٹر کی تعمیر تقریباً 20 سال قبل شروع کی گئی اور گزشتہ سال اپریل میں اسے مکمل کر لیا گیا، جس سے ذہانت اور ڈیجیٹلائزیشن کی مدد سے سمندر میں قدرتی گیس کی تلاش اور پیداوار کے دور کا آغاز کیا گیا۔ یہ منصوبہ ہائنان میں قدرتی گیس کے گھریلو اور صنعتی استعمال کا اہم ذریعہ بن چکا ہے۔ حالیہ برسوں میں اس منصوبے کے تحت قدرتی گیس کی تلاش کے نئے اور اسمارٹ ذرائع تیار کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنایا گیا ہے۔ پیرس میں جاری خلابازوں کی بین الاقوامی فیڈریشن کی کانگریس میں چین کے خلائی پروگرام کے چرچے ہیں۔ خلابازوں کی بین الاقوامی فیڈریشن کے صدر مسٹر پاسکل کا کہنا ہے کہ چین خلائی مشنز پر بین الاقوامی تعاون میں فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ چین کی زیر تعمیر خلائی اسٹیشن کا لیب ماڈیول محققین کے لیے قیمتی ماحول فراہم کرتا ہے۔ خلابازوں کی بین الاقوامی فیڈریشن کی پیرس میں 18 ستمبر سے جاری کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے فیڈریشن کے صدر نے کہا ہے کہ چین خلائی مشنز پر بین الاقوامی تعاون میں فعال کردار ادا کر رہا ہے اور ملک کے زیر تعمیر خلائی اسٹیشن کا لیب ماڈیول محققین کے لیے ایک قیمتی ماحول فراہم کرتا ہے۔ اس اجلاس میں متعلقہ کمپنیز اور تنظیموں، سرکاری حکام اور خلائی شعبے سے وابستہ افراد کے ہزاروں نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ فیڈریشن کے صدر پاسکل کے مطابق IAC 2022 کانگریس کو خاص اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ خلائی برادری سے تحقیقات میں مزید پیش رفت اور ان تمام کمیونٹیز کو اکٹھا کرنے کی منتظر ہے جو خلا سے فائدہ اٹھا سکیں اور انہیں نیٹ ورکنگ اور نئے روابط اور ممکنہ شراکت داری کے مواقع فراہم کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ غیر خلائی شعبے کے ساتھ تعاون بہت اہم ہے۔ فیڈریشن تقریباً 7,000 شرکاء کی توقع رکھتی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے چین اور روس کے درمیان تعاون کو مثال کے طور پر اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ خلائی مشنز پر بین الاقوامی تعاون بیرونی خلا کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ضروری ہے۔ کسانوں نے چین بھر میں تقریباً 86,70,000 ایکڑ رقبے پر محیط کھیتوں میں فصلوں کی کٹائی مکمل کر لی ہے، جبکہ ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں موسم خزاں کی فصلوں کی کاشتکاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے۔ چین بھر کے کسانوں نے ملک بھر میں 13 کروڑ MU یعنی تقریباً 86,70,000 ہیکٹر پر محیط کھیتوں میں فصل کی کٹائی مکمل کر لی ہے، کیونکہ موسم خزاں کی کٹائی جاری ہے اور 10% سے زیادہ کٹائی کا کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں نسبتاً تیز ہے۔ کسانوں نے ملک کے جنوب مغربی علاقوں میں خزاں کی تقریباً نصف کاشت مکمل کر لی ہے، جبکہ مشرقی چانگشی اور وسطی ہوپے صوبوں میں فصلوں کی کاشت کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ موسم گرما کے دوران شدید خشک سالی کا شکار ہونے کے باوجود چیانگشی میں درمیانی سیزن کے چاول اگنے اور پکنے میں کامیاب رہے۔ یہ کامیابی مقامی حکام کی جانب سے خشک سالی کے اثرات کم کرنے کے لیے کنویں کھودنے اور فصلوں کو سیراب کرنے سمیت بروقت اقدامات کی بدولت حاصل کی گئی۔ ہوپے کی فانگشیان کاؤنٹی میں 80,000 MU یعنی تقریباً 5,333 ہیکٹر پر چاول کی بمپر فصل حاصل کی گئی، جس کی مشینی کٹائی کی شرح 92.8% اور گزشتہ سال کے مقابلے میں 4.8% زیادہ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ہی کا کہنا ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک بڑا اور جامع خاندان بن چکا ہے۔ تنظیم کی رکنیت کی سب سے بڑی توسیع وقت کی ضرورت ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چینی صدر شی جن پنگ کی ازبکستان آمد سے تنظیم کی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا ہے۔ وانگ ہی کا کہنا تھا کہ صدر کے دورے سے یوریشیا تک پھیلی شاہراہ ریشم کو مزید تقویت ملی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں چینی قیادت کی سرگرمیوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ چینی ریاستی کونسلر اور وزیر خارجہ وانگ ہی نے کہا ہے کہ صدر شی جن پنگ کے حالیہ دورہ وسطی ایشیا سے شنگھائی تعاون تنظیم کی توسیع کا ایک نیا باب رقم ہوا ہے اور متعلقہ ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات نئی سطح پر پہنچ گئے ہیں۔ چینی صدر شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی کونسل کے 22ویں اجلاس میں شرکت اور قازقستان اور ازبکستان کے سرکاری دورے کے بعد 16 ستمبر کی شب بیجنگ واپس پہنچ گئے۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق 3 دن اور 2 راتوں پر مشتمل انتہائی مصروف شیڈول میں صدر شی جن پنگ نے نور سلطان اور سمرقند کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے 48 گھنٹوں تک قیام کیا اور تقریباً 30 تقریبات میں بھرپور شرکت کی۔ ان تقریبات میں کثیر الجہتی اور 2 طرفہ ایجنڈے شامل تھے، جبکہ سلامتی اور ترقیاتی امور کا بھی احاطہ کیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتہائی مصروفیت کے باوجود بہت سے اہم اور نتیجہ خیز نتائج سامنے آئے ہیں، جن کی بدولت شنگھائی تعاون تنظیم کی توسیع میں ایک نیا قدم اٹھایا گیا اور متعلقہ ممالک کے ساتھ چین کے تعلقات کو نئی سطح پر پہنچایا گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ صدر شی جن پنگ کے دورہ وسطی ایشیا
ایشیا سے یوریشیا تک پھیلی شاہراہ ریشم کو مزید تقویت دی۔ ایک فیصلہ کن موڑ پر موجود بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں مزید استحکام کا باعث بننے والے عوامل سامنے آئے اور ہر لحاظ سے جدید سوشلسٹ ملک کی تعمیر کا نیا سفر شروع کرنے کے لیے زیادہ سازگار بین الاقوامی حالات پیدا ہوئے ہیں۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ اس دوران چینی صدر نے شنگھائی تعاون تنظیم کے کامیاب تجربے کا خلاصہ کیا، یعنی سیاسی اعتماد پر قائم رہنا، جیت جیت کے تعاون، اقوام کے درمیان مساوات، کھلے پن اور جامعیت کے ساتھ ساتھ مساوات و انصاف شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 5 نکات مکمل طور پر شنگھائی روح کو مضبوط بناتے ہیں، جو ہمیشہ شنگھائی تعاون تنظیم کی ترقی کے لیے طاقت کا ذریعہ رہے، اور تمام رکن ممالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والے برسوں میں ان بنیادی رہنما اصولوں کی پیروی کرتے رہیں۔ وانگ ای کے مطابق چینی صدر نے واضح کیا کہ نئے حالات میں شنگھائی تعاون تنظیم کو بین الاقوامی اور علاقائی امور میں ایک اہم تعمیری قوت کے طور پر بدلتی ہوئی بین الاقوامی صورتحال کا سامنا کرنا چاہیے، وقت کے رجحان کو بھرپور انداز میں سمجھنا چاہیے، اسٹریٹجک آزادی کو مسلسل مضبوط کرنا چاہیے، جبکہ یکجہتی کو مضبوط اور گہرا کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ مستقبل کی حامل مزید ہم آہنگ SCO برادری کی تعمیر کے لیے کام کیا جائے۔ چینی وزیر خارجہ کے مطابق اس مقصد کے لیے شی جن پنگ نے 5 نکاتی تجویز پیش کی ہے، جس میں باہمی تعاون میں اضافے، سلامتی کے تعاون میں اضافے، عملی تعاون میں مضبوطی، ثقافتی اور عوام کے درمیان تبادلوں کو مضبوط بنانے اور کثیر الجہتی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ وانگ ای نے مزید کہا کہ یہ تجاویز اتحاد، استحکام اور ترقی کے لیے تمام رکن ممالک کی مشترکہ خواہش کے مطابق ہیں۔ یہ SCO کے لیے ایک لائحہ عمل اور تعاون کے لیے مزید امکانات کی نئی جہت ہے۔ انہوں نے کہا کہ SCO کے سربراہی اجلاس میں معیشت، مالیات، سائنس و ٹیکنالوجی، ثقافت اور عوام سے عوام کے تبادلے، اداروں کی تعمیر اور بیرونی تعامل جیسے شعبوں کا احاطہ کرنے والی 40 سے زائد دستاویزات کو اپنایا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سربراہی اجلاس میں ایران سرکاری طور پر تنظیم کا مکمل رکن بن چکا ہے۔ چین اور SCO کے دیگر ارکان نے بیلاروس کے الحاق کے طریقہ کار پر بھی غور کیا۔ مصر، سعودی عرب اور قطر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے مبصر ممالک کا درجہ دیا، جبکہ بحرین، مالدیپ، متحدہ عرب امارات، کویت اور میانمار کو نئے مبصرین کے طور پر تسلیم کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ چینی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت کی سب سے بڑی توسیع کے نئے دور نے دنیا کے سب سے بڑے علاقے اور سب سے زیادہ آبادی کے حامل خطے کی علاقائی تعاون تنظیم کے طور پر اپنی حیثیت اور اثر و رسوخ کو مستحکم کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ توسیع مکمل طور پر ظاہر کرتی ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک محدود اور چھوٹا گروہ نہیں، بلکہ ایک کھلا اور جامع بڑا خاندان ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک مختصر بریک کا، دیکھتے رہیے چینل ٹوڈے صرف GNN پر۔ ویلکم بیک۔ بیجنگ کے مختلف حصوں میں ڈرائیور لیس کارز کے لیے خصوصی زون قائم کیے گئے ہیں۔ ڈرائیورز کے بغیر کاریں اور ٹیکسیاں چین میں عام دستیاب ہو رہی ہیں۔ خودکار ڈرائیونگ کو ذہانت کے اعتبار سے 5 درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ نیو ویژن میں شامل یہ رپورٹ۔ حالیہ برسوں میں خودکار ڈرائیونگ کا بطور ایک باز ورڈ دنیا بھر میں ذکر کیا جاتا ہے۔ خودکار گاڑیوں کی تحقیق اور تیاری کے شعبے میں چین کے یورپ اور امریکہ سے آگے بڑھنے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ متعلقہ اداروں کے اندازے کے مطابق مستقبل میں چین میں فعال خودکار گاڑیوں کی شرح یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ خودکار ڈرائیونگ ٹیکنالوجی زندگی اور شہروں کو تبدیل کر رہی ہے۔ میں ہوں تبسم۔ اس وقت میں بیجنگ میں خودکار ڈرائیونگ کے ایک شاندار مثالی ایریا میں موجود ہے اور میرے آس پاس سڑکوں پر بہت سی خودکار گاڑیاں ڈرائیور کے بغیر چل رہی ہیں۔ تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر خودکار ڈرائیونگ ہماری روزمرہ زندگی کا معمول بن جائے تو پھر یہ تجربہ کیسا ہوگا؟ دفتر جانے کے لیے میں ڈرائیور لیس ٹیکسی منگواتی ہوں۔ آسان اور باسہولت لگتی ہے۔ اب ایسی ٹیکسیز آرام سے مل جاتی ہیں، آسانی سے بک کی جا سکتی ہیں اور ان میں سفر بھی محفوظ لگتا ہے۔ مجھے تو یہ بہت اچھی لگی۔ میرا دفتر یہاں سے بہت قریب ہے۔ ڈرائیور لیس ٹیکسی کے لیے شاندار ڈسکاؤنٹ بھی زبردست ہے۔ میرے دفتر سے سب وے اسٹیشن تک صرف 2 یا 3 روپے ہی لگتے ہیں۔
इसके अलावा मुझे ऐसी जदीद चीज़ें इस्तेमाल करने का शौक भी है। ऐसा लगता है कि खुदकार गाड़ी लोगों में बेहद मकबूल है और मैंने पहले भी कई मरतबा खुदकार गाड़ी में सफ़र किया है। पता नहीं कि इस एरिया में चलने वाली खुदकार गाड़ी और दूसरी खुदकार गाड़ियों में फ़र्क क्या है। इसीलिए आज मैंने अपनी साथी इफ़त को दावत दी है और हम दोनों एक साथ तजुर्बा करेंगे। इफ़त, हेलो, कैसी है आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो इफ़त, क्या आपने बहरे खुदकार गाड़ी में सफ़र किया है? कभी नहीं। आप इस सफ़र से क्या तवक्कुल कर रही हैं? ये मेरी पहली मर्तबा है तो बहुत एक्साइटेड हो। मैं जल्दी से एक टैक्सी बुलाऊं? जी जी बिल्कुल। उसे भी ऐप पर ऑर्डर किया जाता है। हाँ, इस ऐप की मदद से हम खुदकार टैक्सी ऑर्डर कर सकते हैं। अब देखें हमारे आसपास बहुत से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। जी हाँ बिल्कुल। और हमारा ऑर्डर कबूल हो गया है तो हम थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करें। जी जी बिल्कुल। क्या ये सेल्फ ड्राइविंग कार हमारे लिए है? यस, जी हाँ, हम चलें? जी जी जी। यहाँ मेरा फ़ोन नंबर एंटर करें और फिर ये दरवाज़ा खुद ब खुद ओपन जाएगा। प्लीज़। बाकी कोई ड्राइवर नहीं है? जी, खुदकार गाड़ी है ना। इफ़त, अपनी सीट बेल्ट बांधे। जी। और हमारा सफ़र शुरू करते हैं। हाँ, तो यहाँ खरीद करते हैं ना? जी हाँ, तो शुरू करें। चले। जहानत के मियारात के मुताबिक खुदकार ड्राइविंग को L1 से L5 तक 5 दर्जों में तकसीम किया जाता है। L1 माविन ड्राइविंग, L2 जुज़वी खुदकार ड्राइविंग, L3 मशरूत खुदकार ड्राइविंग, L4 इंतहाई खुदकार ड्राइविंग, L5 कामिल खुदकार ड्राइविंग। ये सही मानों में खुदकार ड्राइविंग है। हालिया अरसे में खुदकार ड्राइविंग का जो तस्वुर ज़्यादा से ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है वह आमतौर पर L3 और इससे ऊपर के दर्जे की खुदकार ड्राइविंग है। स्टीयरिंग व्हील खुद काम कर रहा है। हाँ जी हाँ। इफ़त, क्या आपको पता है कि तकरीबन 2 साल पहले मैंने पहली मरतबा ये जो खुदकार गाड़ी पर सफ़र किया था। लेकिन उस वक्त सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए 2 अहलकार भी बैठे हुए थे। लेकिन आप देखिए 2 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है ना। जी बिल्कुल। और इस वक्त खुदकार ड्राइविंग को मुकम्मल तौर पर अमल में लाया गया है। चीन में खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के बारे में तहकीक साल सन 1992 में शुरू हुई। गुज़िश्ता 3 अशरों से चीन में खुदकार ड्राइविंग की मकबूलियत की शरह और कमर्शलाइजेशन का अमल तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। L2 और इससे ऊपर के दर्जे की खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का वसीह पैमाने पर इतलाक़ किया जा रहा है। मखसूस नौइयत की आला सतही खुदकार ड्राइविंग का तिजारती शोबे में भी इतलाक़ जारी है। चीन में खुदकार टेक्नोलॉजी न सिर्फ वसीह पैमाने पर फ़ाल हो रही है बल्कि हुकूमती पॉलिसी और मालियाती इमदाद की बदौलत खुदकार ड्राइविंग से वाबस्ता मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी तंसीबात और सहूलियात में भी बेहतरी आ रही है। और अहम बात यह है कि सोचने, फैसला करने और अमल करने जैसे गरीबी शोबों में चीनी सख्ता खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फ़ाल है।
अभी थोड़ा सा रश है तो सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए एक टेस्ट होगा। जी हाँ बिल्कुल, और आप सामने इस स्क्रीन को देखिए, इस पर सड़कों और इर्द गिर्द की पूर्वक सूरत हाल नजर आती है। हाँ, आप देखें हमारे आसपास तमाम गाड़ियाँ हैं, लोग हैं और रुकावटें हैं, तो बहुत वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। जी हाँ बिल्कुल, आप जानती हैं कि ड्राइविंग के दौरान ये जो ऐसा अंधा मोड़ आता है जो ड्राइवर को नज़र नहीं आता है, लेकिन खुदगार गाड़ी अपने अंदर नस्ब शुदा ये जो लेदर की मदद से फिर बहुत महफूज तौर पर ऐसे ये जो अंधे मोड़ से गुजर सकती है। वाह, इसी तरह तो सेल्फ ड्राइविंग कार आम गाड़ियों के मुकाबले में तो ज़्यादा सेफ है ना? जी बिल्कुल, और एक और बात है, इस गाड़ी का ड्राइवर नहीं होता तो गाड़ी कभी थकती नहीं हुई है ना, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये गाड़ी ज़्यादा महफूज है। और इस गाड़ी के अंदर में नस्ब शुदा जो स्मार्ट डिवाइसेस की मदद से बहुत से जो हंगामी सूरत हाल से ये गाड़ी खुद निमट सकती है। खुदगार ड्राइविंग के ये 3 अहम शुबों की टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है, यानी सोचना, फैसला करना और अमल करना। सोचने वाले सिस्टम को इंसानी आंखों और कानों की मानिंद करार जा सकता है। ये आसपास के माहौल से आगाही की जिम्मेदारी निभाता है। ये गाड़ी के इतराफ की सूरत हाल से वाबस्ता मालूमात और गाड़ी के अंदर की मालूमात जमा करता है। इस सिस्टम में गाड़ी में नस्ब शुदा लेडर्स और कैमरास शामिल हैं। फैसला करने वाला सिस्टम इंसान के दिमाग के तौर पर काम करता है। हासिल शुदा डेटा के मुताबिक रोड की मनसूबाबंदी, नेविगेशन और फैसला साजी इस सिस्टम की जिम्मेदारी है, जिसमें आला दुरुस्तगी वाले नक्शे और गाड़ियों के इंटरनेट समेत टेक्नोलॉजी शामिल हैं। अमल करने वाला सिस्टम इंसान के सेरेबेलम और दीगर जिस्मानी उज़ की तरह गाड़ी को चला सकता है। जब सामने कोई शख्स या रुकावट आए तो गाड़ी खुद ब खुद इससे बच सकती है। इफ़त, आपको ये सफ़र कैसा लगा? ये सेल्फ ड्राइविंग कार की एक नई तारीफ के तौर पर आज के तजर्बे से मैं बहुत मुतमईन हूँ। ये आरामदायक है, पुरसुकून है और महफूज भी है। मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में इसी तरह की गाड़ी लोगों में मकबूल हो जाएगी। जी हाँ, मैंने इस सफ़र से ये जो खुदगार ड्राइविंग की टेक्नोलॉजी की तरक्की देखी है और उम्मीद है कि अगर मौका मिले तो आप ज़रूर खुदगार गाड़ी पर सवार होने आएंगे। खुदगार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी न सिर्फ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ज़बरदस्त तब्दीली ला रही है, बल्कि जदीद सनत की तरक्की में भी नुमायां किरदार अदा कर रही है। इस वक्त ज़हन माविन ड्राइविंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में तब्दीली और तरक्की का मरकज़ी धारा बन चुकी है। मुस्तकबिल में खुदगार टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मस्नूई ज़हानत, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग समेत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक तहकीक और इतलाक़ भी आगे बढ़ेगा, जिससे चीनी मुयशत की तब्दीली और बेहतरी में भी मदद मिलेगी। चीन की खुदगार टेक्नोलॉजी से जुड़ी सनती चीन की मौजूदा सूरत हाल को देखकर क्यास किया जा सकता है कि चीन ज़हन माविन ड्राइविंग की सनतकारी में तेज़ी से तरक्की करेगा और खुदगार ड्राइविंग के आलमी मैदान में एक शानदार मंजरनामा तश्कील दिया जाएगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर ब्रेक का। देखते रहिए चैनल टुडे सिर्फ GNN पर। आसमान से बातें करते पहाड़ों में घिरे दिल नशीन और दिलकश तिब्बत का माहौल आसमान की तरह साफ और पाकीज़ा है। तिब्बत ख्वाबों, शायरी और तवील फासले का दूसरा नाम है। सेगमेंट चाइना ट्रैवल में इस हफ्ते हम आपको
मीरा पास की सैर कराएंगे जो सतह समुद्र से 5000 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको सांप की तरह बल खाती एक शाहराह पर तवील सफ़र करना पड़ता है। लहासा, लिंगची और शानन तक हेली शाहराह अजायबात में शुमार होती है। इसी पर देखते हैं ये रिपोर्ट। इस रास्ते को देखो जिस पर अब हम रवां दवां हैं। मुझे पहली नजर में दूसरा किनारा नजर नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में ये मनाजिर बहुत खूबसूरत है। आओ पिंकशिया, तुम गाओ। मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर इस आसमानी रास्ते पर हमारा सफर शुरू हो जाए। तिब्बत आसमान से कुछ करीब है। यहाँ का माहौल आसमान की तरह पाकीज़ा और साफ है। लोग उस तरफ जाने वाली सड़क को आसमानी सड़क कहते हैं। बहुत से लोग तिब्बत का ख्वाब देखते हैं। तिब्बत शायरी और फासला है और हम भी ऐसे ही लोगों में शामिल हैं। लिहासा से शुरू होकर लिंगची से गुजरते हुए शानन तक और फिर आखिर में वापस लिहासा तक मजमूई लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर है और ये सफर 1 माह तक जारी रह सकता है। ये हमारा सफरनामा है। तिब्बत में खुद गाड़ी चलाते हुए ऊंचाई एक नागुज़ीर मसला बन जाती है। सिर्फ चंद घंटों में आप सतह समंदर से 2000 मीटर बुलंद हमवार जमीन से 5000 मीटर की चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां सांस लेना मुश्किल है। मसलन मीरा पास। अब हम बाकायदा तौर पर पहाड़ों में दाखिल हो चुके हैं। जब हम मीरा पास पहुंचेंगे तो सतह समंदर से बुलंदी 5000 मीटर से जायद हो चुकी होगी। हर किसी को हिफाजती उमूर पर तवज्जो देना जरूरी है। ठीक है, कोई मसला नहीं। जैसे जैसे बुलंदी में इजाफा होता है, बुलंदी से जुड़े कुछ तिब्बी मसाइल भी सामने आते हैं। तिब्बत में पहली बार सफर के दौरान हमारे लिए ये एक परेशान कुन तजुर्बा है। अब मुश्किलात दूर हो चुकी है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत मनाजिर सामने आ रहे हैं। शानदार मीरा पास ने अपना असल चेहरा बेनकाब कर दिया है। बिलाखिर पहुंच गए। हम मीरा पास पर पहुंच चुके हैं जो 5000 मीटर से जायद बुलंदी पर वाक़ है। ये अब तक मेरी जिंदगी का बुलंद तरीन मकाम है। आइए एक तस्वीर खींच लेते हैं। अच्छा, 1 2 3। 5013 मीटर बुलंद तिब्बत के रास्ते पर। हम इस रास्ते से आए हैं और अब हमें महसूस होता है कि तिब्बत की सड़क बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये सड़क बहुत हमवार है। हमारी सांस फूली हुई है। पता नहीं ये सड़क कैसे तामीर की गई थी। ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों की वजह से कभी तिब्बत नाकाबिले रसाई हुआ करता था, लेकिन अब बुलंदियों पर तामीर की गई इन शाहराहों ने आपको और मुझे दूर उफ्तादा मंजिलों तक पहुंचने के काबिल बना दिया है। लेकिन अव्वल शर्त इस सड़क पर सफर करने का फैसला है। आप तिब्बत में खुद गाड़ी चलाते हुए एक ही दिन में चारों मौसमों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एक लम्हे को महसूस होता है कि बर्फानी तूफान आने वाला है, लेकिन अगले ही लम्हे मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। अब हम लिंगची में दाखिल हो रहे हैं। सड़क किनारे मनाजिर देखें, बहुत खूबसूरत है। ये तिब्बत की सबसे खूबसूरत सड़क है। डोबट पुल लहासा लिंगची एक्सप्रेस वे पर वाक़ है, जो दोनों इलाकों को बाहम मुंसलिक करता है। उस वक्त से खूबसूरत तरीन आबी शाहराह बर्फ से ढके सारे सतह मुर्तफा पर नजर आ रही है। आबी शाहराह 1 किलोमीटर से ज्यादा तवील है और नीली झील के साथ साथ चलती है। रास्ते में पहाड़ों, जंगलों और दरियाओं के साथ मिलकर ये एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो रूह को छू लेती है। इंतहाई खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत है। आबी शाहराह पर गाड़ी चलाते हुए और हम जैसे अजनबियों के सामने मैं समझता हूँ कि सबसे खूबसूरत चीज दरियाए न्यांग का पानी नहीं, ना ही नीली लहरों के ऊपर पुल है, बल्कि ये रास्ता है जो हमें खूबसूरती तक पहुँचाता है। ऊंचाई और आबो हवा के साथ साथ दुश्वार गुजार मकामात और जमीनी साख्त ने तिब्बत को मुख्तलिफ खतरनाक रास्तों से भरपूर इलाका बना दिया है। एक जमाने में थुंगमाई से पायलोंग तक की सड़क को थुंगमाई कुदरती खतरे के नाम से भी जाना जाता था। एक तरफ हंगामा खेज दरियाए पलोंग जांगबू है और दूसरी जानिब खाइयां, गिरती चट्टाने और मट्टी के तौदे हैं। थुंगमाई कुदरती खतरा एक डेड सेक्शन हुआ करता था, जिसके बारे में बात करते हुए ड्राइवरों के चेहरे के तासुरात बदल जाया करते थे।
अभी हम जिस जगह मौजूद हैं इसे थोंग माई पुल कहा जाता है। पुल की तामीर से पहले 14 किलोमीटर का मुख्तसर फासला तय करने के लिए भी बुनियादी तौर पर 2 से 3 घंटे तक ड्राइव करना जरूरी था। इसे दुनिया में मलबे के बहाव के दूसरे ग्रुप के तौर पर जाना जाता है। ये इलाका बर्फ पोश पहाड़ों और नदियों में घिरा है। 2016 में पुल की तामीर के बाद 2 घंटे से ज्यादा वक्त की ड्राइव अब 20 मिनट तक महदूद हो चुकी है। मैं वाकई इन सड़क तामीर करने वालों की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने तिब्बत में नकलो हमल की बेहतरी के लिए जबरदस्त खिदमात सर अंजाम दी हैं। आइए तस्वीर खींचते हैं। वाकई 1, 2, 3। इस वक्त हंगामा खेज दरियाए यगोंग ज़ेंगबू के ऊपर 3 पुल आपस में जुड़े हुए हैं। यूं नए और पुराने रास्ते की तब्दीली से डेड सेक्शन खत्म हो चुका है और पुरानी खाई बिल्कुल एक नया रास्ता बन चुकी है। थोंग माई के करीब वाक़े सेजिला नामी पहाड़ से दूर नांगा पर्वत भी देखा जा सकता है, लेकिन मुसलसल बदलते मौसम की वजह से इसका इम्कान महदूद होता है। दोस्तों, अब हम सेजिला पहाड़ से गुजर रहे हैं। आपको यहाँ मोहतात रहना चाहिए क्योंकि ये टुकड़ा हिमालय और हंगतुआन पहाड़ों के संगम पर वाक़ है, इसलिए यहाँ मौसम तब्दील होने वाला है। मुनफरिद जोग्राफियाई माहौल की वजह से ये किसी भी वक्त बर्फानी तूफान की जद में आ सकता है और बदकिस्मती से हम भी इसकी जद में आ चुके हैं। इस वक्त शदीद बर्फबारी जारी है। पीछे मौजूद एक गाड़ी आगे नहीं आ सकती। इसे खींचने के लिए मेरी गाड़ी इस्तेमाल करें। वहाँ बहुत सी बड़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं जो आगे नहीं बढ़ सकती। ऐसे ऐसे ठीक है दियार, चलो चलो। आखिरकार गाड़ी को कामयाबी से गुजारने के बाद हम सेजिला पहाड़ को अबूर करते हुए बहिफाजत अपनी मंजिल पर पहुंच गए। दर हकीकत बुलंदी पर चाहे सड़कें हों, इंतहाई खूबसूरत आबी शाहराह हो या बिल्कुल नया थोंग माई पुल हो, तिब्बत के तमाम रास्तों पर सफर कांटों से भरा होता है। लेकिन हमने कभी खतरा महसूस नहीं किया क्योंकि आसमानी रास्ते के मुहाफिज हमेशा साथ रहते हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फानी सतह मुर्तफा के रोशन रहने की वजह ये आसमानी सड़क हो सकती है क्योंकि इसके साथ अक्सर बर्फानी तूफान भी आते हैं। क्या ये हमारी जिंदगी में बुलंदियों की जानिब गामजन रहने जैसा नहीं है? चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसीलात जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNN.TV। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।